Good morning, everyone. So we will start with this sum in front of your screen. Following is the balance sheet of Pooja Engineering Company Limited as on 31st December 2017. We have the balance sheet. There is share capital 1500, 8% preference shares of rupees 100 each fully paid. We have 3000 equity share of rupees 100 each, rupees 80 paid up, and we have 4500 equity shares of rupees 100 each, rupees 70 paid up. So there are classes of equity share, two कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर. एक 3000 इक्विटी शेयर जो 100 रुपीज का है बट 80 रुपीज पेड अप है, 20 रुपीज मंगाना बाकी है. देन वी हैव 4500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, जिसका कितना पेड अप है, जिसका 70 रुपीज इज पेड अप, मतलब 30 रुपीज इज पेंडिंग. 8% debentures are there, 8% debentures, and 8% debentures ka they are having a floating charge on all the assets. Floating charge on all assets 1,50,000. Outstanding debenture interest is 6,000. Creditors is 2,40,000. The asset side we have goodwill, land and building, plant and machinery, furniture, equipment, stock, debtor, bill receivable, cash in hand, and profit and loss account signifying loss in the asset side. Then the company went into liquidation as on above date. 31st December 2017 को company went on liquidation. Preference dividend were in arrears for last 3 years and it was to be paid before paying equity share capital. So company को preference share capital को और उनका dividend 3 साल का जो एरियर्स है वो इक्विटी शेयर को पे करने से पहले ये एरियर्स और डिविडेंड कैपिटल जो डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी है पूरा पे करना है. Then creditors include a loan from bank rupees 60,000 secured on the hypothecation of plant and machinery. तो creditors जो 2,40,000 है उसमें इंक्लूडेड है लोन फ्रॉम बैंक जो कि सिक्योर्ड लोन है. क्रेडिटर्स 2,40,000 में 60,000 है a loan from bank which is taken against hypothecation of plant and machinery. So plant and machinery को सेल करके जो भी पैसा आएगा that will be used to pay off this 60,000 का loan. Then we have sundry creditors include preferential creditors of rupees 15,000. So 2,40,000 में 60,000 का बैंक लोन इंक्लूडेड है एंड 15,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी इंक्लूडेड है. द लिक्विडेटर रियलाइज द असेट्स एज फॉलोज. लैंड एंड बिल्डिंग में मिला 3,22,500. प्लांट एंड मशीनरी 75,000 मिला. ये 75,000 में हम 60,000 का जो बैंक लोन है वो पे करेंगे. Then we have office equipment 19,500. Then we have furniture 12,000. Then we have stock 1,05,000. Then we have debtors 90,000. Bill receivable 21,000. Legal charges on liquidation amounted to 1,500. Liquidation expenses rupees 3,900. The liquidator's remuneration was fixed at rupees 1,500 plus 2% सेल ऑफ असेट्स. जितना भी असेट्स को सेल किया उसके ऊपर 2% का कमीशन मिलेगा लिक्विडेटर को.
एक्सक्लूडिंग कैश बैलेंस, कैश जो है उसके ऊपर कोई, वो तो सेल नहीं किया लिक्विडेटर ने कैश को, तो कैश के ऊपर कुछ भी नहीं, बट बाकी जो जितना भी असेट सेल किया है उसके ऊपर उसको 2% का कमीशन मिलेगा। जितना भी असेट ने रियलाइज किया है वो वैल्यू के ऊपर 2% का कमीशन प्लस 4% का +4% मिलेगा, 4% का कमीशन मिलेगा ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी इंक्लूड करके जो अमाउंट है उसके ऊपर 4% का लिक्विडेटर को कमीशन मिलेगा ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स द लिक्विडेटर made payment on 31st March 2017. Liquidators made payment on 31st March 2017. So तभी पे किया है, okay. So let us start this sum. तो यहाँ पे here so let us start this sum. हमें क्या प्रिपेयर, सो ये ईयर एंडिंग क्या है, ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2017, ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर 2017। लिक्विडेटर ने पेमेंट कभी किया, एक्चुअली आई थिंक liquidator made the payment on 31st, so this is 17 or this is 16, this is 17, but यहाँ पे ना ऐसे होना चाहिए था कि लिक्विडेट, ये कंपनी वेंट ऑन लिक्विडेशन ऑन 31 दिसंबर 2017, तो पेमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में जरा सा मिस्टेक है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक ऑल्सो इट इज अ मिस्टेक। लिक्विडेटर पे कभी करेगा, लिक्विडेटर ने फाइनल पेमेंट किया यहाँ पे 31 मार्च 2018 आना चाहिए, 31 मार्च 2018। So here that information is important, why I will let you all know. Now what we have to find out, हमें liquidators final statement of account prepare करना है। So let us prepare the solution. What we want to prepare, liquidators final statement of account। तो यहाँ पे ओके, liquidators final statement of account, particular rupees, so here we will write particulars rupees, तो सबसे पहले हम 2 assets लिखते हैं, सबसे पहले we will write 2 assets, and asset में हमें यहाँ पे वी लेकिन ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकती हूँ मैं, मुझे एक एक करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई विल डू वन थिंग, यहाँ पे मुझे जो जो असेट दिया है, रिवाइज वैल्यू दिया है, मैं वो यहाँ से ले रही हूँ, गुडविल का नहीं है वैल्यू, तो ये ऐसे आई विल टेक, बिकॉज असेट को कैसे रियलाइज किया है दैट इज गिवन हियर, सो आई विल टेक फ्रॉम हियर, बिकॉज वहाँ से आई एम नॉट एबल टू कॉपी, सो आई विल कॉपी हियर। और यहाँ पे एक और चीज मुझे लिखना है, दैट इज कैश बैलेंस, कैश इन। सो पर मुझे यहाँ पे न्यू वैल्यूज दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग 3,22,500, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3,22,500। फिर हमें
प्लांट एंड मशीनरी दिया है, वो यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज वो सिक्योर्ड लाइबिलिटी के ऊपर लिया गया है। फिर हमारे पास है ऑफिस इक्विपमेंट 19,500। ऑफिस इक्विपमेंट जो जो नया वैल्यू दिया है वो नया वैल्यूज लिख रही हूँ मैं। 12,000 फर्नीचर का वैल्यू है। फिर स्टॉक कितना है, स्टॉक 1,05,000, so I will write 1,05,000। फिर डेटर बिल रिसीवेबल कितना है, डेटर 90,000, बिल रिसीवेबल 21,000, सो 90,000 21,000। अब मुझे चाहिए कैश इन हैंड, क्वेश्चन में भी दिया है देखो, कैश इन हैंड को छोड़ के बाकी सब में कमीशन है। कैश इन हैंड है 12,000, so I will write here cash in hand 12,000। So I have written all the value of assets which were realized by the liquidator, वो सबका मैंने वैल्यू लिख लिया। So now what I will do, the next one यहाँ पे दिखना पड़ेगा to surplus from securities, to surplus from securities। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज में हम लिखते हैं असेट रियलाइज्ड और यहाँ से लेस करते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर, यहाँ से लेस करते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहाँ पे लेटर सी कि असेट रियलाइज क्या हुआ, यहाँ पे बैंक लोन है, 6 क्रेडिटर है, क्रेडिटर में इंक्लूडेड है बैंक लोन 60,000 का जो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर सिक्योर्ड है। तो प्लांट एंड मशीनरी 75,000, तो असेट रियलाइज इज 75,000। सो यहाँ पे लिखेंगे सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज में 75,000 एंड वो जो सिक्योर क्रेडिटर है इट इज ऑफ 60,000। सो माइनस करके सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी कितना है 15,000, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी 15,000। सो यहाँ पे बाई, यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंसेस है देखो जो अभी यहाँ पे लिखना है हमें, बाई लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस 1,500 है। फिर हमें लिखना है बाई लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन यहाँ पे आएगा जो हम वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे आएगा बाई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। हाउ मच इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 3,900। फिर उसके बाद हम डिबेंचर्स क्रेडिटर्स सबको पे करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अदर क्रेडिटर्स सब पे करेंगे। लेकिन सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट हियर liquidators remuneration, very important thing, that is we have to calculate the liquidators remuneration, liquidators remuneration। So liquidators remuneration is how much, liquidator remuneration में 1,500 तो फिक्स है, तो इसमें क्या आएगा 1,500 प्लस कितना परसेंट 4% निकालना है, 4% का रेमुनरेशन है। नहीं पहले 2% ऑन एसेट रियलाइज, फिर 4% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है 1,500 प्लस पहले तो हमें 2% चाहिए, 2% जो है वो किस पे है, 2% है असेट रियलाइज पे। सो असेट रियलाइज कितना है सब ऐड करो,
असेट रियलाइज्ड कितना है उसके ऊपर हमें रेमुनरेशन चार्ज करना है. सो असेट रियलाइज्ड 2%. तो असेट रियलाइज लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के हाउ मच इट इज ऐड करो 3,22,500 फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, 12,000 फ्रॉम फर्नीचर, फिर 19,500 ऑफिस इक्विपमेंट, फिर 1,05,000 स्टॉक, फिर डेटर में 90,000, फिर 21,000 प्लस 75,000 फ्रॉम द प्लांट एंड मशीनरी. ये सबको ऐड करके 2% रेमुनरेशन कितना होता है देखो. ऐड ऑल ऑफ देम 3,22,500 plus 12,000 plus 19,500 plus 1,05,000 plus 90,000 plus 21,000 plus 75,000. This is coming to 6,45,000. So plus 2% of 6,45,000. ये कितना अमाउंट रहेगा 1,500 प्लस कितना मिला 6,45,000 का 2% इस 12,900. इतना होता है 2%, 12,900. अभी क्या करना है हमें. नाउ व्हाट वी विल डू, हमें 4% और मिलने वाला है लिक्विडेटर को. 4% लिक्विडेटर को 4% मिलने वाला है. 4% और देखो यहाँ पे दिया है 4%. पहले तो 2% मिलने वाला है असेट रियलाइज में excluding cash plus 4% on the amount distributed to unsecured creditors including preferential creditors. So यहाँ पे what we have creditors हमारे पास है 2,40,000. तो इसमें हमें चाहिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है उसमें हमें एक चीज ध्यान में रखना है. वी हैव टू इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसके ऊपर भी मिलने वाला है. तो माइनस आई एम डूइंग 60,000 विच इज व्हाट 60,000 वाज सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो माइनस कर दिया मैंने. तो बाकी का सब अनसिक्योर्ड रहेगा ना, बाकी का सब अनसिक्योर्ड रहेगा. सो 60,000 अनसिक्योर्ड 60,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर मैंने माइनस किया. सो देखो हाउ मच इट इज कमिंग 4%, बिकॉज ये रिमेनिंग 4% ऑफ 60 माइनस किया तो कितना होता है 1,80,000. ये 1,80,000 में इंक्लूसिव ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. क्वेश्चन में भी बोला है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को इंक्लूड करके 4% कमीशन निकालना है लिक्विडेटर को देने के लिए. सी कि 4% लिक्विडेटर को 4% कमीशन मिलने वाला है ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. तो यहाँ पे 2,40,000 में 60,000 जो सिक्योर क्रेडिटर्स था वो माइनस किया, बाकी सब हमने वैसे का वैसा ही लिया है. करेक्ट, बाकी हमने वैसे का वैसा ही लिया है. सो नाउ फाइंड आउट हाउ मच इज दिस कमिंग 4%. How much we are getting? So here 1,80,000 का 4% is 7,200. Is how much? 7,200. So liquidators commission कितना है? Liquidators remuneration या commission is how much is equal to 1,500 तो फिक्स था, फिर प्लस 12,900, फिर प्लस
7,200. ये सबको ऐड करो, we will get the liquidator's remuneration. We will get the liquidator's remuneration. So यहाँ पे what is that 1,500 plus 12,900 plus 7,200 हमें मिलता है 21,600. हमें कितना मिलता है 21,600. सो लिक्विडेटर का कमीशन हमें कितना मिला 21,600. तो ये एज पर वर्किंग नोट इट इज 21,600. इट इज 21,600. So this is done. दिस इज डन. नाउ हमें किसको पे करना है, ये कमीशन भी दे दिया, तो सबसे पहले डेटर्स को पे करना पड़ेगा. सबसे पहले हमें किसको पे करना पड़ेगा, डेटर्स को. तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, सॉरी डेटर्स बोल रही हूँ, डिबेंचर्स को. किसको पे करना है, डिबेंचर्स को. लाइबिलिटी पे ध्यान देना है, लाइबिलिटी. तो डिबेंचर्स है 1,50,000. सो डिबेंचर्स को पे किया 1,50,000. फिर आफ्टर दैट व्हाट वी हैव आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, हमें डिबेंचर को पे किया. फिर बाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे विच इज 6,000. इसके बाद एक और चीज आएगा दैट इज बाई एक्रूड इंटरेस्ट. ये क्यों एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, देखो लिक्विडेशन 31 दिसंबर को हुआ, बट लिक्विडेटर को पेमेंट का लेकिन व्हेन वाज द पेमेंट ऑन मेड, व्हेन वाज द पेमेंट मेड 31 मार्च 2018. मतलब 3 महीने बाद पूरा पेमेंट हुआ. तो भले लिक्विडेशन का प्रोसीजर 31 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, पर एग्जैक्टली जाके खत्म कभी हुआ, इट गॉट ओवर ऑन 31 मार्च. तो अभी डिबेंचर्स पे दैट इज 1,50,000 इंटू 8%, बिकॉज 8% डिबेंचर है 3/12. तो ये जो एक्रूड है ये भी मिलेगा डिबेंचर को. 8% डिबेंचर है देखो. So how much is this coming? 1,50,000 into 8% into 3/12. 1,50,000 into 8% into 3 divided by 12. How much are we getting here? We are getting 3,000. So ये भी दे दिया. डिबेंचर को पूरा सेटल कर दिया. डिबेंचर को सेटल करने के बाद हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करते हैं 15,000. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करना है तो बाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 15,000. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करने के बाद हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करते हैं. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करते हैं. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है, टोटल क्रेडिटर 2,40,000 था. 2,40,000 में 60 was secured and 15 is preferential creditors. तो अनसिक्योर्ड कितना है देखो, 2,40,000 माइनस 60,000 जो कि सिक्योर क्रेडिटर है, माइनस 15,000 जो कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है. तो अनसिक्योर्ड कितना रहेगा 1,65,000. फिर इसके बाद अभी हम किसको पे करेंगे, अभी हम पे करेंगे बाई रिटर्न्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो ये इनको क्या दो चीज देना है, इनको एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड देना है. 3 साल का एरियर्स है, वर्किंग नोट में देखते हैं. और इनको देना है इनका
preference share capital. So here we will see how much arrears of preference dividend is there. Arrears of preference dividend. Let us see, 3 साल का पेंडिंग है ना, 3 साल का एरियर्स है, फर्स्ट लाइन में दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन एरियर्स फॉर 3 years, लास्ट 3 years और बिफोर पेइंग इक्विटी शेयर कैपिटल, इनको इनका डिविडेंड देना है. सो 8% प्रेफरेंस शेयर 1,50,000 पे क्या निकालना है, कितना है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1,50,000 इंटू 8% करेंगे तो 1 year का डिविडेंड मिलेगा, 1 year का डिविडेंड मिलेगा. सो 1,50,000 इंटू 8% इट इज 12,000. फिर 3 years का डिविडेंड कितना रहेगा, 3 years इक्वल टू 12,000 इंटू 3. तो डिविडेंड इज इक्वल टू हाउ मच, डिविडेंड इज इक्वल टू 36,000. करेक्ट. 3 साल का डिविडेंड एरियर्स है, 3 years डिविडेंड आर इन एरियर्स. तो यहाँ पे हमें मिल गया डिविडेंड कितना देना है, 36,000. कैपिटल है 1,50,000. इसके बाद क्या करना, लास्ट जिसको पे करेंगे विल बी रिटर्न्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय रिटर्न्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो ये क्या मिलेगा इनको, उनका इक्विटी शेयर कैपिटल. ये कितना दे मिल रहा है उसके लिए व्हाट वी विल डू, क्लोज दिस साइड, टोटल करो कितना आ रहा है, डेबिट साइड कितना आ रहा है. क्या हम जितना तक पे कर सकते बस उतना ही पे करेंगे, बाकी का सब डेफिशिएंसी है. तो just take the total of the debit side, how much cash is there with us, सबको ऐड करो, all the amounts को ऐड करो. you're getting 5,97,000, 5,97,000. अभी ये सब माइनस करो, तो एक काम करो, क्रेडिट साइड का टोटल निकालो, 1,500 प्लस 21,600 प्लस 3,900 प्लस 1,50,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 1,65,000 प्लस 36,000 प्लस 1,50,000. तो ये होता है 5,52,000. तो माइनस करो 5,97,000 के साथ, तो हमें यहाँ पे बैलेंस मिलता है 45,000. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम सिर्फ 45,000 ही दे पाते हैं. कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स है, 3,000 प्लस 4,500, 3,000 प्लस 4,500. तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, एंड इनका जो है देयर द रिमेनिंग इज डेफिशिएंसी. सो यहाँ पे 45,000 is what we are paying to equity shareholders. So हम कितना अमाउंट नहीं पे कर पा रहे, हाउ मच अमाउंट आर वी नॉट एबल टू पे. let us see here the working note, amount due to equity shareholders. amount due to equity shareholders कितना है जरा देखो, the balance sheet it is there
2,40,000 and 3,15,000. 2,40,000 and 3,15,000. So यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000 plus 3,15,000, which is equal to how much? Add both of them. 5,55,000. तो यहाँ पे हमने कितना अमाउंट पे किया? अमाउंट पेड कितना है? हाउ मच इज द अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है? अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू, हमने कितना पे किया? 45,000 पे किया. सो अभी भी डेफिशिएंसी कितना हुआ? व्हाट इज द डेफिशिएंसी? कैन एनीवन टेल मी? डेफिशिएंसी है कितना पे करना था? 5,55,000. कितना पे किया? 45,000. तो जितना पे नहीं कर पाए इज द डेफिशिएंसी, दैट इज 5,10,000 इज द डेफिशिएंसी. आपको समझा? डेफिशिएंसी मतलब हमने सारे स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी को पे किया, बट लास्ट में जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर रहे थे तो टोटल उनको 2,40,000 का एक इक्विटी शेयर होल्डर का क्लास है, दूसरा 3,15,000, तो 5,55,000 पे करना था, पर हमने सिर्फ 45,000 पे किया. सो दिस इज द डेफिशिएंसी. तो नाउ हाउ मच इज लॉस पर शेयर? नाउ आई वांट टू फाइंड आउट लॉस पर शेयर. तो 5,10,000 डिवाइड बाई, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? डेफिशिएंसी डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स. डेफिशिएंसी डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स. सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है पहले देखो? 3,000 and 4,500. 3,000 and 4,000. तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 3,000 प्लस 4,500, विच इज इक्वल टू 7,500 शेयर्स. तो डेफिशिएंसी हमें पता है 5,10,000 डिवाइड बाई 5,700, which is equal to rupees 68 per share is the loss per share. Loss per share कितना है? rupees 68. rupees 68 per share is the loss. 68 रुपीस का लॉस हुआ है पर शेयर. अगर हम देखें कितना डेफिशिएंसी है तो 68 रुपीस का देयर इज अ डेफिशिएंसी. तो अभी हमने कितना अमाउंट इनको पे किया वो जरा देखते हैं. पेड टू शेयर होल्डर्स. तो इससे ये कैसे निकालना है? पेड अप. ये सब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देयर आर टू क्लास ऑफ शेयर्स. पेड अप वैल्यू लेस लॉस. तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द पेड अप वैल्यू. व्हाट इज द पेड अप वैल्यू? ये 80 रुपीस है पेड अप वैल्यू और दूसरा है 70 रुपीस पेड अप वैल्यू. तो यहाँ पे देखो here rupees 80 paid up में कितना लॉस है? तो यहाँ पे 3,000 शेयर्स है. यहाँ पे देखो 3,000 and 4,500. तो 80 में 3,000 शेयर्स है जिनको हमने कितना पैसा पे किया? 80 रुपीस है. उनको नहीं पे कर पाए कितना पर शेयर?
68 रुपीज, कितना पे नहीं कर पाए? 68, मतलब टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 80 रुपीज पे किया। एक क्लास ने 80 रुपीज पे किया है और दूसरा क्लास 70 पेड अप, 70 पेड अप। उस पे 4500 शेयर्स है और उसमें 70 इंटू एक शेयर के पीछे 68 रुपीज का लॉस हुआ है। डेफिशिएंसी कितना है? डेफिशिएंसी इज 5,10,000 इन टोटल, मतलब टोटल 2,40,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना था, 2,40,000 एंड 3,15,000 टोटल मिला के इतना था, 5,55,000, जिसमें से हमने इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ 45,000 पे किया, तो डेफिशिएंसी है 5,10,000 का। इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया तो एक शेयर पे 68 रुपीज का लॉस हुआ। तो 80 अगर हमने पे किया, हमें 68 रुपीज का लॉस हुआ, तो हमने कितना पे किया है? हमें 12 रुपीज। यहाँ पे 70 रुपीज का पेड अप वैल्यू और 68 रुपीज का लॉस है, तो एक शेयर पे कितना इक्विटी शेयर होल्डर को मिला? 2 रुपीज। सो 3,000 इंटू, इधर देखो, देखो अभी हमें आंसर हमारा मिलने वाला है 3,000 इंटू 12 इज हाउ मच? 3,000 इंटू 12 इज 36,000। मतलब जो पहला वाला इक्विटी शेयर होल्डर है जो 80 पेड अप है, उनको 36,000 उनको मिला है। एंड दूसरा जो क्लास है जहाँ पे 70 पेड अप है, उधर 4,500 शेयर है, उनको भी 68 रुपीज का डेफिशिएंसी हुआ है, तो उन्होंने शेयर के पीछे 70 रुपीज पे किया था, 68 रुपीज का डेफिशिएंसी हुआ, तो 2 रुपीज उनको मिल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये हो जाता है 9,000। ये दोनों को ऐड करो, ऐड बोथ ऑफ देम, ये दोनों को ऐड करो तो टोटल कितना मिला है? ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, कितना होता है? जो इनको मिला है इक्विटी शेयर को रिटर्न्स मिला है 45,000, ये दोनों को ऐड किया तो 45,000। पे अटेंशन हियर, 45,000। देखो यहाँ पे हमने देखा हाउ मच इज द रिटर्न्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इनको 45,000 मिला है एंड ये 45,000 मिला तो इनको टोटल कितना मिलना चाहिए था? इनको मिलना चाहिए था, इनका इक्विटी शेयर है 2,40,000 एंड 3,15,000 दूसरे क्लास का, तो इनको टोटल 5,55,000 इनको ड्यू था, लेकिन उसमें से 45,000 मिला तो डेफिशिएंसी हो गया 5,10,000 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड किया तो 68 रुपीज का पर शेयर लॉस हुआ। तो एज पर पेड अप वैल्यू देखा जाए तो पहला जो है उन्होंने 80 रुपीज पे किया था, जिसमें उनको 68 का लॉस हुआ, तो 3,000 शेयर पे सिर्फ 12 रुपया मिला, और दूसरा 70 रुपीज पेड अप में भी 68 का लॉस हुआ तो 2 रुपीज मिला। तो मल्टीप्लाई करके इस हिसाब से अब शेयर होल्डर में भी तो डिवाइड करना है लास्ट में वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम पे। तो जो पहला क्लास ऑफ शेयर होल्डर है उनको लास्ट में 36,000 मिला एंड दूसरा क्लास ऑफ शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको सिर्फ 9,000 मिला। सो विद this sum is done. Thank you very much everyone.